So, hello students, welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about canonical form or triangular form का next theorem. So, statement is given that if T belongs to AB has all its characteristic roots in F, then there is a basis of V in which the matrix of T is triangular. So T करके कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इन एफ. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपको पता है, फर्स्ट हम आइगन वैल्यू तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स उसको भी बोलते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और आइगन फैक्टर फाइंड करते हैं. तो आइगन फैक्टर का यहाँ कोई रूल नहीं है, आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक रूट जो दिया है. ओके, देन देयर इज ए बेसिस भी इन व्हिच मैट्रिक्स ऑफ टी इज ट्रायंगुलर. सो टी में एक बेसिस, ओके, टी में एक वेक्टर है. ओके, और उस वेक्टर का एक बेसिस है जो कि ऐसे फॉर्म करेगा. ओके, सो वो टी ट्रायंगुलर हो जाएगा. तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे? दैट इज योर वी प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन. ओके, इंडक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ v ओवर f. सो इफ dimension of v is equals to 1, then every element in A of v is scalar. Okay, so if dimension of v equals to 1, मतलब एक ही एलिमेंट होगा. So A of v is scalar and so the theorem is true. Assume the theorem is true for all vector spaces over f of dimension n minus 1. Okay, so let v be the vector space of dimension n over f. Let the linear transformation T on V has all its characteristic roots in F. Let the V vector space of dimension n over F, okay, and the linear transformation T on V has its all its characteristic root in F. So we will prove that there is a, okay, we will prove that there is a basis of V in which matrix of T is triangular. वहाँ पर एक ऐसा बेसिस होगा जबकि टी, जहाँ पर टी हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रायंगुलर होगा. ओके, सो लेट लैम्बडा 1 बिलोंग्स टू एफ बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट ए जीरो वेक्टर v1 belongs to v. Okay, then there exists a non-zero vector v1 belongs to v, so that v1t equals to v lambda. ओके, आपने पढ़ा होगा आइगन वैल्यू में. ओके, सो Vt इक्वल्स टू v lambda मीन्स v1t इक्वल्स टू lambda 1 v1 इधर हो जाएगा. सो लेट w इक्वल्स टू अल्फा v1. ओके, अल्फा v1 मीन्स v1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और स्पान बाय v1 हम कर सकते हैं. सो देन w है ये वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ v, ओके, जनरेटेड बाय v1. सिंस w इज wt सबसेट ऑफ w which implies w invariant on t. ओके, फिर आपको ये लिख देना है v bar equals to v by w where w is subset of v. Okay, v by w means w is subset of v. Then dimension of v is equals to dimension of v minus dimension of w which is equals to n minus 1. So the linear transformation t on v induces a linear transformation t bar on v bar defined by v प्लस डब्ल्यू टी इक्वल्स टू वी टी प्लस डब्ल्यू. ये v प्लस डब्ल्यू कहाँ से आया? इधर से. ओके, v बार से, और v बार टी बार इक्वल्स टू वी टी प्लस डब्ल्यू आपको पता है. सो z मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t डिवाइड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t. ओके, ये टी बार का जो मिनिमल पोलिनोमियल है ये मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t को डिवाइड करेगा. सो गिवन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ t आर in F, then all the characteristic roots of minimal polynomial for t lie in F. Thus all the roots of minimal polynomial for t lie in F. अगर t का मिनिमल पोलिनोमियल है तो t बार का भी है. So hence all the characteristic roots of t also lie in F. And we know dimension of v cap equals to n minus 1 and the linear transformation t
bar on V bar has all its roots in F, then by induction hypothesis there exists a basis, ओके V2 V3 to Vn, ओके V1 से नहीं लिखना है आपको, V2 से लिखना है, बिकॉज अल्फा V1 इक्वल्स टू W हमने लिख दिया है यहाँ पर. सो ओवर F सो दैट द मैट्रिक्स ऑफ द बेसिस इज ट्राइंगुलर. फर्दर आपको ये ऐसे डिफाइन करना है, ये V2T V2 बार T बार इक्वल्स टू अल्फा 2 to V2, ओके, and V3 T bar equals to alpha 3 2 V2 bar and alpha 3 3 V3 bar. Okay. Similarly Vi and Vn को भी डिफाइन कर लेना है आपको. So V1 bar belongs to V bar equals to V by W. Okay, so there exists Vi belongs to V, so that Vi bar equals to V1 plus that is Vi plus W. So let V2 V3 Vn the elements of V mapping into V2 bar V3 bar dot Vn bar, okay, respectively. So हमको क्लेम करना है V1 V2 Vn इज ए बेसिस ऑफ V. तो कैसे प्रूव करेंगे हम? बेसिस मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन पहले ले लेंगे इसको, अल्फा 1 V1 प्लस डॉट अल्फा एंड Vn इक्वल्स टू 0 फॉर अल्फा ई बिलोंग्स टू स्केलर, ओके. देन W इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, 0 प्लस W लिख सकते हैं, तो 0 के प्लेस में हम लिख लिए अल्फा 1 V1 टू अल्फा एंड Vn प्लस W, एंड इसको हम जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अल्फा 1 होल इंटू V1 प्लस W प्लस डॉट प्लस अल्फा एन Vn प्लस W, that is alpha 2 V2 plus dot alpha and Vn equals to 0 का बार equals to W, means it is W is a zero element, okay. So since V2 bar V3 bar and Vn bar form a basis for V bar over F, we have alpha 2 equals to 0 equals to alpha 3 is equals to alpha n equals to 0. Now alpha 1 V1 plus alpha n Vn equals to 0, which implies alpha 1 V1 equals to 0, because alpha 1 V1 equals to 0 क्यों आया, बाकी सब तो 0 हो गया, ओके. ये यहाँ से, ओके, और हम यहाँ से भी लिख सकते हैं. सो Vi not equals to 0, therefore alpha 1 equals to 0. Thus alpha 1 V1 plus dot alpha and Vn implies alpha 1 equals to 0. अब alpha 1 से लेकर alpha n 0 हो गया. अगर alpha 1 से लेकर alpha n सब स्केलर 0 हो गया तो V1 V2 से लेकर Vn Li हो गया. So Li हो गया तो वह फॉर्म ए बेसिस ओवर F. Now we prove that in this basis the matrix of T is triangular. ओके, सो मैट्रिक्स ऑफ टी ट्रायंगुलर कैसे प्रूव करेंगे हम? पहले V2 T बार को लेके चलेंगे. V2 T बार इक्वल्स टू अल्फा 2 टू V2 बार, ओके. ये कैसे हम लिखे? ये हम लिखे यहाँ से ये, ओके. देन V2 T बार इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V2 T प्लस W माइनस अल्फा 2 V2 प्लस W इक्वल्स टू 0. 0 का बार मीन्स बिलोंग्स टू W, दैट इज योर 0 एलिमेंट, that is your V2T minus alpha 2 to V2 belongs to W, okay. Since the element of W are scalar multiple of V1, okay, element of W scalar multiple of V1 कैसे आया, ये हमने लिया है, okay. W equals to alpha V1, so element of W is the scalar multiple of V1, we can say, okay. Then ये हम कहाँ थे, since the element of W are the scalar multiple of V1, we have V2T minus alpha 2 to V1 equals to, ये जो belongs to W है, belongs to W के प्लेस में हम लिख लिए alpha 21 V1, for any scalar alpha 21 V1 ले लिए. तो अब क्या हो जाएगा, V2T equals to इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके. इन जनरल I greater than equals to 2, so Vi bar T bar equals to alpha I2 V2 bar plus dot alpha II V I बार, ओके. ये वी आई ऑफ टी बार कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये 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 यहाँ से वी आई बार टी बार इक्वल्स टू, ओके.
alpha 1 2 v2 plus alpha 1 3 v3 plus dot alpha I vi का बार. Okay, then implies that vi t minus alpha I2 v2 minus alpha I3 v3 dot minus alpha I vi belongs to w. ये कैसे आया? vi of t bar equals to vit plus w, then v2 bar equals to v2 plus w, then vi का बार equals to vi plus w. अगर माइनस हो जाएगा तो बिलोंग्स टू w हो जाएगा यहाँ पर. ओके, ये एक साइड और माइनस का w मीन्स बिलोंग्स टू w, जो हमने यहाँ पर किया था. ये किधर गया? ये रहा. ओके, ये v2 बार t बार इक्वल्स टू अल्फा टू टू v2 बार विच इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा? ये v2 प्लस w v2t प्लस w माइनस अल्फा टू टू v2 प्लस w. अगर v2t माइनस अल्फा टू टू v2 को अगर एक साथ ले लिए तो माइनस w ओके वो बिलोंग्स टू w हो जाता है. ओके, सो इधर भी ऐसे ये वाला w हो गया. सो v1t माइनस अल्फा I2 माइनस अल्फा I3 माइनस अल्फा II v1 इक्वल्स टू अल्फा I1 v1. सो ये v1 नहीं, ये vit है. v1 के प्लेस में आप vit, बिकॉज हम यहाँ पर vit है, यहाँ पर भी vit होगा. ओके, सो प्रिंट थोड़ा मिस्टेक है. सो डी इम्प्लाई vit इक्वल्स टू, हमने w के प्लेस में ले लिया अल्फा I1 v1, हमने लिया था अल्फा 21 v1 अल्फा, अब लेंगे अल्फा I1 v1. सो vit इज इक्वल्स टू अल्फा 11 v1 प्लस डॉट अल्फा II vi. Thus v1 dot vn is a basis of v, such that v1t is equals to alpha 11 v1, v2t equals to alpha 21 v1 alpha 22 v2, then vit equals to alpha I1 v1 alpha I2 v2 ऐसे करके alpha II vi. ओके, देन अल्फा, देन vnt के लिए भी सेम. ओके, देखो ये vn v2 बार t2 बार v1 t बार मीन्स एक ही एलिमेंट रहता है. ओके, बार लेके अगर ये अगर प्लेन है तो ऐसे आप लिखना है. ओके, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप इसको ओके एंड इसको आप थोड़ा ध्यान से लिखना. ओके, ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो v1t इक्वल्स टू अल्फा 11 v1, v2t इक्वल्स टू अल्फा 21 v1 ऐसे करके आप लिखना. ओके, देन conclusion में that is v1t is a linear combination only of v1 and its predecessors in basis. Thus the matrix of t in this basis v1 v2 v3 vn is triangular, which completes the proof. अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर लो. So further following more updates, like, share and subscribe.